नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, लेकिन आज के इस दौर में यह सपना बहुतों के लिए सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन अब आपके शहर आसनसोल में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निकट मां घाघर बुढ़ी मंदिर के समीप अनंता रेसिडेंसी ने आपके सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। बेहद वाजिब कीमतों पर सुरक्षित माहौल में आपको मिल जाएगा अपने सपनों का आशियाना। बेहद मनोरम प्राकृतिक माहौल में अनंता रेसिडेंसी में प्रकृति की गोद में आपको मकान नहीं, आशियाना मिलेगा। यहाँ से बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार, अस्पताल सभी बेहद नज़दीक होने से यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए अनंता रेसिडेंसी और पाइए अपने सपनों का आशियाना। मोबाइल नंबर 9933121270 और 7076368674। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आज पश्चिम बर्धमान जिला शासक कॉन्फ्रेंस हॉल में पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने किया। यहाँ पर स्वास्थ्य दफ्तर के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। आने वाले 9 जनवरी से मीज़ल्स और रूबेला की रोकथाम को लेकर जो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा उस पर आज विस्तृत चर्चा की गई। इस संदर्भ में पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने बताया कि आज की बैठक में 9 जनवरी से 11 फरवरी तक मीज़ल्स और रूबेला की रोकथाम के लिए जो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा उसको लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। पश्चिम बर्धमान ज़िले में कुल 6 लाख बच्चों को 2286 स्कूलों और सरकारी अस्पताल तथा 915 शिविरों के जरिए मुफ्त टीके दिए जाएंगे। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের মিসেলস এন্ড রুবেলা ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন সারা পশ্চিমবঙ্গে জুড়ে করা হবে। আমাদের জেলা পশ্চিম বর্ধমান সেখানেও করা হবে 9 জানুয়ারি থেকে 11 ফেব্রুয়ারি 2023 পর্যন্ত। এই ক্যাম্পেইন যেটা আছে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইনে 9 মাস থেকে 15 বছর পর্যন্ত যারা বাচ্চারা আছে তাদের মিসেলস রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। ভ্যাকসিনেশন যেটা আছে এটা আমার গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট স্কুল আর এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেটা আছে সেখানে ফ্রি অফ কস্ট এটা ওনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। ভ্যাকসিনেশন যেটা রুটিন ভ্যাকসিনেশনটা অলরেডি চলছে, তার সাথে এটা আলাদাভাবে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের জেলাতে প্রায় 6 লাখ বাচ্চারা এটার থেকে উপকৃত হবে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার 6 লাখ বাচ্চাদেরকে যে ভ্যাকসিনেশনটা দেওয়া হবে এটা 2286টা স্কুল এবং গভর্নমেন্ট হসপিটাল আর 915 সেশন সাইটের মাধ্যমে এই পুরো ভ্যাকসিনেশনটা দেওয়া হবে। सर कितना स्कूल सर बताएं? 2286। 2286। हाँ, ये जिले का सिर्फ है ना सर? जिले का 2 মাস ধরে আমাদের বিভিন্ন মনিটরিং মিটিং হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে, আর এটা আইসিডিএস স্কুল এবং কিছু কিছু যারা অল্পসংখ্যার যে স্কুল ড্রপ আউট আছে সবাইকে এই ভ্যাকসিনেশনটা দেওয়া হবে। তার জন্য মাইক্রো প্ল্যানিং মানে ব্লক ওয়াইজ জিপি ওয়াইজ করা হয়েছে। আর যে আমাদের যে মিসেলস রুবেলা ভ্যাকসিনেশনের যে ক্যাম্পেইন আছে তার সাফল্য কামনা করার জন্য আমি আপনাদের প্রেসের মাধ্যমে সমস্ত পশ্চিম বর্ধমান জেলা বাসিন্দাদেরকে আমাদের অনুরোধ। থ্যাংক ইউ। ठीक है, स्कूल में মানে প্রত্যেকটা ফিল্ড লেভেলে মানে কোঅর্ডিনেশন এটা তো টার্গেটেড আছে। কোভিড ভ্যাকসিনেশন ছিল ওটা মানে সামারি ছিল, যে কেউ যেতে পারে যে কেউ নিতে পারে, কিন্তু এখানে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে। তো সেই এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী মানে বেশিরভাগ আমাদের 80% কভারেজ ইজ থ্রু স্কুল।
স্কুল প্রশাসনের সাথে বসা হয়েছে ডিপিও আইসিডিএস যিনি আছেন, যিনি আইসিডিএসটা দেখছেন, সেটা আইসিডিএস এর সাথেও বসা হয়েছে। এখানে কিন্তু যেটা আছে কি টার্গেট অডিয়েন্স যারা আছে তাদেরকে কিন্তু ক্যাপটিভলি পাওয়া যায়, ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? তো এটা কিন্তু মানে ইউনিভার্সাল ইয়ে নেই, তো সেটার জন্য মানে আমাদেরকে পাবলিকলি খবরটা ছড়াতে হবে। প্যারেন্টসের সাথে সেন্সিটাইজেশন মিটিং হয়েছে, আমাদের সিএম ওয়াইজ সাহেব আছেন, উনি আরো বিস্তারিত ভাবে বলবেন কি স্কুল প্যারেন্টসদের সাথে যোগাযোগ করেছে। আমরা যে মাইক্রো প্ল্যান করেছি সেই মাইক্রো প্ল্যানটা ব্লক ওয়াইজ এবং কর্পোরেশনের সাথে দুটো আলাদা করে মিটিংও করা হয়েছে। এইটা যে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকেও মানে বিভিন্ন জেলাস্তরীয় আধিকারিকদের সাথে মানে রাজ্যস্তরীয় আধিকারিক এবং ইভেন টু সাম এক্সটেন্ট কেন্দ্র স্তরীয় আধিকারিকরাও এসে আমাদের এএমসি ডিএমসি সব জায়গাতে মাইক্রো প্ল্যান যেটা হয়েছে ওটাকে রিভিউ করেছে। এখন আমাদের প্ল্যানিং যেটা করেছি আমরা এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যতগুলোকে আমরা যারা 9 months to 15 আছে তাদেরকে কভারেজ করার জন্য আমরা প্ল্যান করেছি। এইটাকে করতে গেলে মানে যে কন্টিনজেন্সিটা অ্যারেঞ্জ করতে পারে কি কিছু হয়তো নাম নেই তাদের জন্য মানে মপ আপ রাউন্ডের প্রভিশনটা রাখা আছে। তো এখন আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী যে আমরা ফোর্সি করতে পারলাম যে সমস্ত অসুবিধাগুলো হবে বলে সেগুলোর জন্য আমাদের প্ল্যানে প্রাবধান আছে। যদি আর কিছু আনফোর্সিং যদি কোনো এক্সিজেন্সি যদি হয় তার জন্য কিন্তু আমরা জেলাস্তরীয় লেভেলে মিটিং করে নিয়ে সেটাকে আমরা মিট আপ করবো। কারণ আসানসোল কর্পোরেশন একটা রবীন্দ্র ভবনে মিটিং করলো, কিন্তু তাতে দেখা গেল যে 4-5 জন মাত্র পাবলিক ছিল। একটা কমিউনিটি থেকে সমস্যা হচ্ছে বলে আমার কাছে খবর ছিল, সেটা সমাধান করার জন্য কর্পোরেশন একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করেছিল, তাতে মাত্র 4-5 জনই উপস্থিত ছিলেন, মানে তার থেকে গেস্ট বেশি ছিল। তো এইটা যে হচ্ছে তার মানে সমস্যা একটা কোথাও হচ্ছে, সেটা কিভাবে ওভারকাম করবে? সেটা আমরা ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার সময় আমাদেরকে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইনিং করে করতে হবে। নিশ্চয়ই ওরা তো কাজে লাগবে। सुपौल के एनएस रोड इलाके में स्थित आरएल के नर्सिंग होम के मालिक राकेश केडिया आज पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर उनके साथ रक्तदान आंदोलन से जुड़े बिलाल खान और समाज सेवी मनोज लोहारुका भी मौजूद थे। इस मौके पर राकेश केडिया ने बताया कि आने वाले 10 तारीख को आरएल के नर्सिंग होम प्रांगण में हर साल की भांति इस साल भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ज़रूरतमंदों के बीच ये कंबल भी बांटे जाएंगे। राकेश केडिया ने बताया कि हर साल अपने माता पिता की याद में वो ये कार्यक्रम करते हैं और इस साल भी 10 जनवरी को आरएल के नर्सिंग होम परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मरीजों के लिए आरएल के नर्सिंग होम की तरफ से नए साल के उपहार स्वरूप एक घोषणा की। उन्होंने बताया कि आरएल के नर्सिंग होम की तरफ से एक कूपन जारी किया गया है जिसमें 20% डिस्काउंट की व्यवस्था रखी गई है। नर्सिंग होम की तरफ से हमारा एक संस्था है रामेश्वर लाल केडिया वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें हर साल की तरह इस बार भी हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। इनका मेरा मकसद है कि हमारे पिताजी ने जो सामाजिक काम किए हैं उनको ये जिनके आशीर्वाद से हम फले फूले हैं, हाँ जिनका है, और ये जो ब्लड हमारे पिताजी माताजी का आशीर्वाद के चलते मैं जो ये सेवा करने सक रहा हूँ, जो आदमी हमारे पास आते हैं ब्लड डोनेट करने और ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए जो मैं सेवा करता हूँ, हाँ उन लोग के आने के कारण हमको सेवा करने का एक मौका मिलता है। अगर वो लोग नहीं रहेगा तो मैं सेवा भी नहीं कर सकूँगा। और इसमें हमको प्रेस मीडिया सब हमको सपोर्ट करते हैं। इसमें हमको हमारे मलय घटक साहब, विधान उपाध्याय साहब, विधान उपाध्याय साहब, अमरनाथ चटर्जी, SD हॉस्पिटल के डॉक्टर निखिल चंद्रा, ये लोग और भी डॉक्टर हैं और भी जनमान नेता सब हैं, वो हम लोग को पूरा सपोर्ट करते हैं। और ये काम मैं अपने पिताजी और माताजी की याद में करता हूँ। इसमें हमको कोई ये नहीं है कि इससे हमको कोई बेनिफिट मिलेगा। इस बार हमने एक नया स्कीम लॉन्च करने जा रहा हूँ, 10 तारीख को लॉन्च करूँगा इनके शुभ हाथों से। नर्सिंग आरएल के नर्सिंग होम में जो भी पेशेंट आएगा उसको अप टू 20% का नर्सिंग होम का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस ब्लड टेस्ट में भी डिस्काउंट मिलेगा और ये और मेडिसिन में डिस्काउंट का इंतजाम किया है।
जिनके पास ये कूपन रहेगा वो कूपन लेके आएगा। साल में 3 बार ये आदमी कूपन यूज कर सकता है और किसी को भी दे सकता है। जिसके पास ये कूपन आएगा, मान लीजिए आपके सामने कोई गरीब आदमी है जो नर्सिंग होम आना नहीं चाहते ज़्यादा बजट के लिए, तो वो बजट को कम करने के लिए हाँ ये कूपन वो लेके आएगा एडमिशन के समय। मैं उस आदमी को ये काम करूँगा। सेकेंड, इसके बाद जो भी है कि जो पेशेंट है, जो गरीब है, जो इलाज नहीं करा सकता है, उसको नर्सिंग होम का चार्ज में अगर जो देने सकेगा देगा कि कूपन के अलावा भी, मगर उसको डॉक्टर का, नर्सिंग होम का, टेस्टिंग का, दवाई का पैसा देना हो। नर्सिंग होम का चार्ज अगर नहीं भी देगा तो हम उसको इलाज करेंगे। यही मेरा मेन मकसद है। ये मेरे पिताजी और माताजी के आशीर्वाद से हमको ये काम करने को मिला। ये स्कीम क्या सभी के लिए लागू रहेगा? ये सभी के लिए लागू है। ये कहाँ मतलब ये सिर्फ अंचल? ये मैं पूरा आसनसोल पश्चिम बंगद्वान में इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ। ये करीब 5,000 कूपन छपाया हूँ। ये 5,000 कूपन मैं इंटीरियर एरिया, गरीब एरिया, बस्ती उस्ती में दूंगा, उसमें लागू करूँगा। साल में 3 बार मतलब ये एक कूपन पर 3 बार, साल में 3 बार। 3 बार। अगर मान लीजिए कोई भी अगर आदमी मान लीजिए और वो आदमी अगर 3 बार कूपन यूज हो गया, उसके बाद भी अगर दरकार पे हमसे कूपन लेंगे, हम उसको या उसको एक्सटेंशन कर देंगे। ये कूपन लेने के लिए क्या करना होगा? कूपन मैं खुद रोड को जाके बांटूंगा। और कोई अगर है, जैसे कोई संस्था को दे दिया, उसके पास कूपन रहेगा, कोई प्रेस वाला लोग को दे दिए, कोई नेता लोग के पास हो गया जनगण का, कूपन दे दूंगा कि जो उसको भेज सके। अच्छा, इस सब ब्लड डोनर में कितने का टारगेट लिए हैं? हमने 100 बोतल का टारगेट लिया हुआ है, बाकी देखें कितना होता है। ब्लैंकेट मोटा मोटी 200 ब्लैंकेट का मैं टारगेट किया हूँ। इसके आगे भी मैंने ब्लैंकेट बांटा है, मोटा मोटी 300-400 ब्लैंकेट ऑलरेडी मैं बांट चुका हूँ। राकेश जी बोल रहे हैं, वो लेट से आया था। पहला चीज़ एक प्रेस मीटिंग इसलिए लाना है, ये मेरा नाम राकेश कुमार केडिया है। मैं आसनसोल RLK नर्सिंग होम का प्रोप्राइटर भी हूँ, रामेश्वर लाल केडिया वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर भी हूँ। मेरे संग बिलाल खान है, वो हमारे रामेश्वर लाल केडिया का भी एक मेंबर है। मनोज लोहार का है, ये भी हमारे RLK रामेश्वर लाल केडिया का वेलफेयर का हुनर है। मैं इस बार 10 तारीख को अपने माताजी और पिताजी की याद में एक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा हूँ। उस ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा हूँ जिसमें हमारे मंत्री साहब, मलय घटक साहब, चेयरमैन साहब, मेयर साहब, विधान उपाध्याय, चेयरमैन साहब अमरनाथ चटर्जी और सुपरिटेंडेंट SDO सुपरिटेंडेंट ने वो अपने आप से अपने हाथ से साइन किया है। ये सर्टिफिकेट मैं ब्लड डोनर लोग को दूंगा। और उसके बाद मैं ये जो कम्बल दे रहा हूँ, उस दिन हमारे संग आ रहे हैं, हमारे यहाँ आने का आश्वासन दिए हैं विधान उपाध्याय साहब, BC दासू साहब, अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत गटर, निखिल चंद दास, वासिम उल हक, गुरदास चटर्जी, उत्पल सिन्हा, शिखा गटर, उदय राय, अर्जुन माझी, डॉक्टर सुनील गुप्ता राय, माधव मंडल, DP राय, इंद्रनील चौधरी, देवीदास मुखर्जी, D गांगुली, ये डॉक्टर गुलो भी हमारे यहाँ आएंगे। और ये हमारा ये मेन उद्देश्य है कि मैं ये जो कर रहा हूँ अपने माता पिता जी याद में, जो आदमी हमारे यहाँ कम्बल डिस्ट्रीब्यूशन देने आते हैं और जो ब्लड डोनेट करने आते हैं, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से मैं ये काम कर सक रहा हूँ। अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं ये काम नहीं कर सकूँगा। जो ये कोई दान नहीं है, ये हमको एक उन लोग आते हैं हमारे पास है तो मैं उन लोगों को देने का चेष्टा करता हूँ। उनका आशीर्वाद से ही मैं ये काम कर सक रहा हूँ। और उसके बाद मैं एक डिस्काउंट कूपन छोड़ने जा रहा हूँ पूरा आसनसोल में। हाँ, वो आसनसोल में डिस्काउंट कूपन छोड़ने जा रहा हूँ जो अप टू 20% का ये होगा। मेरे पिताजी और माताजी के कार्ड पे चैरिटी फील्ड पर RLK नर्सिंग होम में ये डिस्काउंट कूपन लागू होगा, जिसमें जो भी गरीब पेशेंट आता है, मजबूर पेशेंट आता है, जिसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं, ये कूपन लेके आएगा, मैं उनको अप टू 20% डिस्काउंट दूंगा। उसके बाद इसके ऊपर अलादा भी मैं मेडिसिन पर और ब्लड टेस्ट पर भी डिस्काउंट दूंगा, जो उनको सुविधा हो जाए कि कहीं पर जैसे बहुत जगह ये होता है कि नहीं पैसा नहीं रहने के कारण वो लोग इलाज नहीं करा सकते हैं, ऐसा नहीं हो, मैं उसका सुविधा के लिए इंतजाम कर रहा हूँ। और उसके बाद और भी एक काम है कि मान लीजिए कोई गरीब आदमी जो पैसा एकदम ही नहीं दे सकता,
उसके लिए भी मैंने इंतजाम किया कि नर्सिंग होम को उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको डॉक्टर दवाई और टेस्टिंग का पैसा देने भाई मैं उनका इलाज करूँगा, उनको मजबूर होकर भेजूंगा नहीं। ये हमारा मेन उद्देश्य है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आदिवासियों के बड़े त्यौहार बांधना के अवसर पर आज बाराबनी ब्लॉक TMC की तरफ से आदिवासी समाज की महिलाओं के बीच साड़ियां वितरित की गईं। इस मौके पर बाराबनी के विधायक और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी बाराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आदिवासियों के सबसे बड़े त्यौहार बांधना के उपलक्ष्य पर ईंटापाड़ा पंचायत में कुल 1200 साड़ियाँ वितरित की गईं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए तृणमूल कांग्रेस हमेशा समाज के हर वर्ग के साथ खड़ी रहती है। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए ये कार्यक्रम किया गया। उत्सव बड़ उत्सव से उपलक्षे हमारे ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस उद्योगे मेयर साहेब हमारे विधानसभा मेयर MLA तार उद्योगे আমরা ইটাপাড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস শাড়ি বস্ত্র বিতরণ করলাম। এখানে আমাদের 3-4টে পাড়া আছে, বড়ডাঙ্গা, বড়পাড়া, কন্যাপাড়া, আজিনাডাঙ্গা আর এর আগে পাকুড়িয়াতে প্রায় 700 শাড়ি বিলি হলো। এখানে আছে পাকুড়িয়া, নাদাই, তালগাঁও, লিখবাড়ি বিভিন্ন গ্রামে। আপনার নাম? আমার নাম সুকুমার সাধু। আজকে ইটাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের পাকুড়িয়া মোড় ওখানে 3-4টে পাড়া ছিল, আর আমাদের চটি এই পাড়াটা বড়ডাঙ্গা এখানেও 2টো পাড়া, বরমপুরা। তো এখানে প্রায় 800-র মতো, দুটো 500 আর 700 প্রায় 1200-1300-র মতো শাড়ি এখানে দেওয়া হলো ইটাপাড়া পঞ্চায়েত। কি উপলক্ষে দেওয়া হচ্ছে? বান্না উৎসব। ওদের যে বান্না উৎসব আসছে প্রতি বছরে আমাদের বারাবণী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শাড়ি দেওয়া হয়। এখানে আমাদের গত 3 दिन থেকে শাড়ি দেওয়া চলছে পুরো বারাবণী ব্লক। एक सरकारी बैंक के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर आसनसोल के चित्रा मोड़ में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये स्वास्थ्य जांच शिविर शुक्रवार को बैंक के अंदर आयोजित हुआ, जहां ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर समेत विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए गए।
कार्यक्रम के दौरान 80 लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। क्या लेकर आज स्वास्थ्य चेकअप कैंप हो रहा है? आज हमारे बैंक का 80वां स्थापना समारोह हम लोग मना रहे हैं काफ़ी हर्षोल्लास के साथ। इसी उपलक्ष्य में यूको बैंक बर्नपुर ने मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, जहां हम अपने कस्टमर को फ्री चिकित्सा मुहैया करवा रहे हैं। इस कैंप में ब्लड शुगर, प्रेशर, वेट और जो भी अन्य बीमारियां हैं उनकी चेकअप हो रही है। और यहाँ पे जो संजीवनी जी का कैंप अस्पताल है, वो हमारे कस्टमर को 10% साल भर तक अपने चेकअप में डिस्काउंट देंगे। आज की मुफ्त की शिविर हो रही है? आज बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। कितने आदमी तक अभी तक चेकअप किया गया? अभी तक लगभग 80-85 लोगों का चेकअप हो चुका है। टारगेट कितना आप लोग का? कम से कम 150। तो जन्मदिन आप लोग का जो आपका जो 80तम जो आप लोग का ये है फाउंडेशन डे जी, इस तरह का से मनाने का आप लोग का सोच कैसे है जो हेल्थ के बाद स्वास्थ्य का काम करे? जब से कोविड हम लोगों ने देखा है आज के दौर में, तो स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूकता आई है। लोगों के मन में थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति चिंता सोचते हुए हम लोगों ने चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, ताकि लोगों को भी जागरूक किया जाए कि भाई आप स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा गंभीर रहें। देखने में तो सब कुछ सही लगता है, बट अंदर में क्या चल रहा है ये हमें पता नहीं होता जब तक हम टेस्ट के लिए ना जाएं। और जनरली बहुत सारे लोग टेस्ट के प्रति लापरवाह होते हैं। कुछ होता है तो चलो ठीक है, हो रहा है, जब तक कि कुछ गंभीर बीमारी ना हो जाए हम लोग नहीं जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये कैंप आयोजन किया है। वर्षगांठ को छोड़कर इस तरह यूको बैंक कभी भी समाज के प्रति कोई निष्ठा या कार्य करता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल करता है सर। जैसे हम लोग कभी स्कूल में जा करके या कॉलेज में जा करके बैंक के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई कैसे आप बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कैसे आप इंश्योरेंस का पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है वित्तीय सेवा में तो कहाँ आती है, क्या आता है, तो उसके बारे में जागरूक करते हैं। अभी साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहा है, तो इसको लेकर क्या बैंक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है? जी बिल्कुल सर, ये हम लोग कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है, आरबीआई के द्वारा भी पेपर में, टीवी पे ऐड दिया जा रहा है कि कभी भी कोई फ्रॉड कॉल आता है आप उसको रिसीव ना करें और उसको कट कर दें। कभी भी अपने पिन, ATM पिन हो चाहे बैंकिंग का पासवर्ड हो, कभी किसी के साथ शेयर ना करें, कभी पासवर्ड लिख के ना रखें। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार, ब्रांच हेड, जुलाई 2022 में ज्वाइन किया हूँ यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना
हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।